A very good afternoon to everybody. This is Dr. Shikha, and today we're going to be talking about something which is very, very important. So, a little bit first about my journey. I started out as a medical doctor. My medical training was in Maulana Azad Medical College. And after my medical training, I joined the Department of Cardiology at GB Pant Hospital. And there, as a young doctor, I saw how patients of heart attack would die because it was too late for us to save those patients. And even the patients who could be saved, they went back home without understanding that they have to completely, radically change their eating habits and their lifestyle, their exercise habits, their sleeping habits. So when they went back with medication, no doubt, but they did not change their diet and lifestyle permanently. They just changed it for 2-3 months, just 2-3 months. And I could see that they slipped back into their bad diet and lifestyle. And such patients come back again with another cardiac emergency. So if you don't change your diet and lifestyle, the first emergency can save your life, but not necessarily the next emergencies. So with that, I decided to actually pursue the path of preventive healthcare, wellness, and food as medicine, because I did not want to keep waiting in the hospital for a patient to come and die on the table. I thought, let me go out into the community, working to educate, train, and support people to become healthier, to help them become healthier. Now, what are the key things? ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग हेल्दी नहीं हो पाते? सबसे पहले तो लैक ऑफ नॉलेज. इंटरनेट पे इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है, वो कुछ पढ़ते हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, कुछ सही होता है, बट कुछ गलत होता है. एंड नॉर्मली जो रिसर्च पेपर्स लोग पढ़ नहीं पाते बिकॉज उसको इट्स डिफिकल्ट टू रीड रिसर्च पेपर, वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है. बट लोग नॉर्मली कुछ इंस्टाग्राम वीडियो देख लेते हैं या कुछ इस तरह से कैजुअल देखते हैं. अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? नॉन सर्टिफाइड पीपल आर मेकिंग दोज वीडियोस. So I'm not saying internet is bad. Internet can be very good, very powerful. But आप रिसर्च पढ़िए, आप इंस्टाग्राम के बेसिस पे चीजें मत कीजिए. एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर इंस्टाग्राम पे आप कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट वैलिडेट एंड वेरीफाई कि जो पर्सन वो बता रहे हैं उनकी कोई तो क्वालिफिकेशन है, कोई तो डिग्री है. आफ्टर ऑल डिग्री का क्या मतलब होता है कि आपको उसमें ट्रेनिंग भी मिली है और आपको टेस्ट किया गया है कि आपको काम आता है कि नहीं. So even if you have to follow Instagram or Facebook or YouTube or somebody, make sure you're following qualified people and not unqualified people जिनकी कोई responsibility नहीं होती. So having said that, हम सबको पता है कि आज के समय में बहुत सारे अच्छे supplements available हैं. बहुत से supplements doctors भी कहते हैं आपको खाना है, और कुछ तो खैर supplement companies भी आपको advertisement के through बताती हैं कि ये supplement है, इसके लिए अच्छा है, ये supplement इसके लिए बुरा है. So let's first begin by answering some fundamental questions. And the fundamental questions are, क्या अगर आपकी डाइट डेफिशिएंट है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और ना आप उसको अच्छा करना चाह रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स आपका सहारा बन सकते हैं. कैन सप्लीमेंट सपोर्ट यू अगर आपकी डाइट ना अच्छी है और ना आप उसको अच्छा करना चाह रहे हैं? इट्स अ वेरी क्लियर क्वेश्चन आई एम आस्किंग. तो द आंसर इज नो. अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और ना उसको आप अच्छा करना चाह रहे हैं और आप सप्लीमेंट्स के सहारे अपनी बॉडी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, नॉट पॉसिबल, कैटेगोरिकली नॉट पॉसिबल. तो सवाल नेक्स्ट आता है कि अगर सप्लीमेंट कंपनी कहती है आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप सप्लीमेंट लीजिए तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी, तो क्या झूठ बोल रही है? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही है. टेक्निकली जैसे कि हम जब ओपीडीज चलाते थे तो हमारे ओपीडीज में लेडीज आती थी, प्रेग्नेंट विमेन आती थी जिनका बहुत आयरन डेफिशिएंसी था, बहुत लो आयरन था, और उनकी डिलीवरी 2 महीने में थी, 3 महीने में थी. तो हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते थे ताकि वो क्विकली आयरन बढ़ना शुरू हो जाए, ताकि क्विकली उनकी बॉडी में आयरन बढ़े और उनका हीमोग्लोबिन बढ़े और वो एक सेफ लेवल तक पहुंच पाए. बट दैट वाज अ
टेम्पररी फिक्स. इट वॉज नॉट कि आपको लाइफ भर अब आयरन खाना है, बिकॉज उसमें फिर आगे प्रॉब्लम्स आती है और उसको मैनेज करना मुश्किल होता है. सो कोई भी सप्लीमेंट आप नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते. दैट प्लीज अंडरस्टैंड. कोई भी सप्लीमेंट आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप नहीं ले सकते. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए. सो लाइक फर्स्ट पॉइंट आई सेड कि अगर आप अपना खाना पीना ठीक नहीं करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट आप लेते भी रहेंगे, आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा. इनफैक्ट एक समय के बाद हो सकता है साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाए. तो खाना तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा, अपनी न्यूट्रिशन को आपको नेचुरल वे में ठीक करना ही पड़ेगा. तो सप्लीमेंट का क्या रोल है? एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है कि इन दैट पीरियड यू कैन बिल्ड योर बॉडीज लेवल्स. तो उस समय डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक इट. इट्स यूजफुल, इट्स हेल्पफुल. एज डॉक्टर्स हमने भी कई सप्लीमेंट्स दे रिकमेंड करे हैं. बट डोंट टेक इट कि अब मैं लाइफ लॉन्ग यही करूंगा एंड आई विल हैव अ बैड डाइट, आई विल नॉट इम्प्रूव माई डाइट. नो. अ डेफिशिएंसी इज एन इंडिकेटर बाय द लिवर कि आप सही नहीं खा रहे हैं, आप गलत खा रहे हैं. सो दैट शुड टीच यू कि यू हैव टू फिक्स योर फूड. एंड सप्लीमेंट इज अ क्रच. It's a temporary crutch to help you get there. Now the next thing is कि क्या सप्लीमेंट विदाउट एडवाइस देनी चाहिए? आई वुड से नॉट ऑल सप्लीमेंट्स. एंड डेफिनेटली एट सम पॉइंट आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए. दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सप्लीमेंट्स को इतना रेगुलेट टाइट नहीं करता है. सो ओवर द काउंटर आप जाके मल्टीविटामिन ले सकते हैं, एयरपोर्ट पे ले सकते हैं. बट आने वाले समय में आई एम 100% श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लीमेंट मार्केट को रेगुलेट करेगा. बिकॉज बहुत सारे लोग सप्लीमेंट को गलत तरीके से ले रहे हैं, बिना समझे ले रहे हैं, और उन्हें उस वजह से आगे प्रॉब्लम्स होने की आशंका है, चांसेस हैं. So what are the kind of problems which can happen? First problem which can happen is कि कई लोग ओवर एक्साइटमेंट में ढेर सारे सप्लीमेंट एक साथ खा रहे होते हैं. विटामिन बी भी खा लिया, डी भी खा लिया, कैल्शियम भी खा लिया, विटामिन सी भी खा लिया, के भी खा लिया, डी भी. सो दे आर एक्चुअली ईटिंग इट लाइक दिस. जैसे लोग मूंगफली खाते हैं, चना खाते हैं. पीपल आर हैविंग सप्लीमेंट्स कि अच्छा ये तो सेफ है, वो तो लिखा हुआ है सेफ है, तो ऐसे खा लेते हैं. That's totally wrong. That's not the right way to do it. आप ढेर सारे सप्लीमेंट्स नहीं खा सकते. Why? Two very important things. Why? First, जो सप्लीमेंट आप खा रहे हैं वो उसकी एक्टिव कंपाउंड के लिए खा रहे हैं कि वो हमारी बॉडी में जाके कुछ करेगा, राइट? कुछ, और वो जो करेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. बट विदाउट रियलाइजिंग कि एक एक्टिव सप्लीमेंट और दूसरा एक्टिव सप्लीमेंट अगर आप साथ खा लेंगे, हो सकता है वो क्रॉस रिएक्ट कर जाए. और करते हैं सप्लीमेंट्स क्रॉस रिएक्ट बिकॉज आफ्टर ऑल देयर एक्टिव मॉलिक्यूल्स. एंड एक्टिव मॉलिक्यूल्स डायनेमिक है, वो रिएक्ट करेंगे. और अगर वो रॉन्ग क्रॉस रिएक्शन हो, कुछ तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है सिनर्जिस्टिकली पोटेंशिएट, यानी सिंपल भाषा में एक और एक 11. सिनर्जिस्टिक या पोटेंशिएशन होता है, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. और एक सप्लीमेंट साथ आप खा लो तो वो 11 का उनमें पावर आ जाती है. एक और एक 11, यानी उनमें वो 11 वाली पावर आ जाती है. एक और एक 2 की पावर नहीं होती, राइट? और कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अगर आप साथ खा लो तो एक दूसरे को काट देते हैं, एक दूसरे को ही खत्म कर देते हैं. सो एक मिसाल के तौर पे अगर आपने आयरन सप्लीमेंट खाया या आपने बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट खाया और साथ में कैल्शियम खा लिया, तो वो 1 - 1 0 इस तरह का अटैक करेंगे. दोनों अपने आप में अच्छे हैं,
बट आपने, क्योंकि वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं, तो आपने उन दोनों का इफेक्ट खराब कर दिया, क्योंकि साथ खा लिया आपने। इसी तरह से सप्लीमेंट्स आपकी, अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन ले रहे हैं, और उसके साथ आपने सप्लीमेंट ले लिया, तो वो भी क्रॉस रिएक्ट करते हैं। बिकॉज मेडिसिन, एलोपैथ मेडिसिन इज अ केमिकल मेडिसिन, वो उसका एक्टिव कंपाउंड है। सप्लीमेंट इज अ प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट, उसका भी एक्टिव कंपाउंड है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, ऑपोजिट, अगेंस्ट, तो साइड इफेक्ट हो सकता है, राइट? जैसे ब्लड प्रेशर में एक दवाई होती है जिसका रोल होता है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। तो ब्लड प्रेशर में दवाइयां जो, एलोपैथिक दवाइयां क्या करती हैं, बहुत सी दवाइयां होती हैं, बट एक जो बहुत कॉमन दवाई है, वो आपकी ब्लड में वाटर लॉस करा, आपकी बॉडी में वाटर लॉस कराती है, डायूरेसिस कराती है, यानी आपकी बॉडी का वाटर लॉस कराती है, जिससे कि वो बीपी को कंट्रोल करती है, उससे बीपी नीचे आता है। अब आप ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक खा रहे हैं, यानी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यानी आपकी बॉडी में पोटेशियम किडनी से बाहर फेंका नहीं जाएगा, या कम फेंका जाएगा। इट इज स्पेयरिंग द पोटेशियम एंड कीपिंग इट इन द बॉडी। और साथ में आप कोई मल्टीविटामिन खा रहे हैं जिसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी खासी है। अब आपकी बॉडी में क्या होगा, जरूरत से ज्यादा पोटेशियम हो रहा है, क्योंकि एक तो आपका जो दवाई है ब्लड प्रेशर की, वो प्रेफरेंशियली पोटेशियम को बॉडी में रख रही है, प्लस आपने कोई ऐसा मल्टीविटामिन खा लिया जिसमें पोटेशियम है, तो वो एडिशनल आ गया। अब ये एडिशन और ये एडिशन, ही दोनों जुड़ के बहुत ज्यादा पोटेशियम हो रहा है आपकी बॉडी में। और आपको, आप सोच रहे हैं आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सिमिलरली, आप किसी का सपोज कुछ कार्डियक इवेंट हुआ है, तो उसको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, यानी ब्लड को थोड़ा पतला रखने के लिए दवाई देती है, टिपिकली कार्डियक पेशेंट्स को दी जाती है, ताकि उसमें क्लॉट ना बने, राइट? और कार्डियक पेशेंट्स की आमतौर पे डायबिटीज भी होती है, बिकॉज डायबिटीज और कार्डियक जो डिजीज होती है वो साथ साथ आती है। डायबिटीज हो गई, उसके बाद डायबिटीज की वजह से इंसुलिन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन से प्लाग्स बनने शुरू हुए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनना शुरू हुआ, लिवर में प्रॉब्लम है, तो डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज एकदम साथ साथ चलनी शुरू होती है। तो आपकी ये, किसी पेशेंट की अगर ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही है, और उसने, किसी फ्रेंड ने उसको बताया कि भाई डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए तो मैं करेले का जूस पीता हूँ, आप भी पियो, तो उनको क्या लगेगा, करेला तो भाई सब्जी है, इसमें क्या है, हम करेला जूस पी सकते हैं। उन्होंने करेले का जूस बनाया और पी गए, उनकी ब्लड शुगर थोड़ी कंट्रोल हो गई, वो बहुत खुश। अब वो दिन में 2 बार करेले का जूस पी रहे हैं। बट जो दवाई वो खा रहे हैं, ब्लड थिनिंग दवाई, और करेला है, वो भी ब्लड को थिन कर रहा है। अब इमेजिन आप क्या होगा उनके शरीर में, कि एक तरफ तो करेला उनकी खून को पतला कर रहा है, करेला, कच्चा करेले का रस, नॉट पका हुआ, कच्चे करेले का रस, और दूसरी तरफ उनकी दवाई भी वही काम कर रही है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, सडनली ब्लीडिंग हो जाएगी। सो द क्वेश्चन इज कि सब अपने अपनी जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट पेशेंट को नहीं पता होता क्या चीज कब लेनी है। सो व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू से इज कि डोंट अज्यूम कि आप जो ऑल्टरनेटिव सप्लीमेंट्स हैं उनको बिना एडवाइस के लेंगे तो वो हमेशा फायदा करेगा। एंड एज अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव वर्कड माई एंटायर लाइफ इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जहाँ पे हम करेले का जूस कहते हैं, हम पेठे का रस कहते हैं, बट ऑल्सो नोइंग फुल्ली वेल कि जो हम बता रहे हैं, साथ में ये भी देखना है कि भी दवाई क्या चल रही है और किस समय देना है, व्हाट टाइम इट शुड बी गिवन,
क्योंकि गलत समय में गलत देने से भी ज्यादा फायदा नहीं होता। जैसे कई मल्टीविटामिन हैं, उनको खाने के साथ लेना चाहिए, बेटर असर करते हैं। कई चीजें हैं, जैसे आप विटामिन सी ले रहे हैं, विटामिन सी को कैल्शियम के साथ नहीं लेना, विटामिन डी के साथ नहीं लेना। बी कॉम्प्लेक्स है, अगेन कैल्शियम विटामिन डी के साथ नहीं लेना। बी कॉम्प्लेक्स को यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपकी कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है तो सारे विटामिन आप अपने आप नहीं ले पाएंगे, और लेने भी नहीं चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि कौन से विटामिन कैंसर की मेडिकेशन के साथ रिएक्ट ना कर जाए, क्योंकि कई बार रिएक्शन होता है जिससे कि खतरा बढ़ जाता है। और ये आप जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि हम अपनी बॉडी को कई बार बहुत कैजुअली लेते हैं, कुछ भी बॉडी में डालते हैं, कुछ भी। एंड दैट इज वाई आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं, या तो सही ना खा के, या फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके अपने शरीर के साथ। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको जो भी आप दवाई खाएंगे वो आपको अंडर सुपरविजन, अंडर एडवाइस खाएं। स्पेशली जब मैं बात कर रही हूँ कि आपकी सप्लीमेंट्स भी साथ में आप खा रहे हैं। सप्लीमेंट्स की मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, दे कैन बी अ वेरी गुड हेल्प, एंड गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स कैन रियली सपोर्ट। बट कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस चीज के साथ खाना है, और कब तक खाना है, कब ब्रेक्स देने हैं, दिस इज क्रूशियल, दिस इज क्रिटिकल। क्योंकि आप अच्छा करने जा रहे हैं, आपके साथ नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज fortunately I am at the intersection of both worlds, the allopathic world एंड द नेचुरल मेडिसिन वर्ल्ड। दोनों के न्यूट्रिशन, दोनों के इंटरसेक्शन पे हूँ, क्योंकि मैंने एलोपैथ में ट्रेनिंग ली और नेचुरल मेडिसिन में आ गई, यूजिंग फूड एज मेडिसिन, यूजिंग सप्लीमेंट्स। तो इसीलिए ये आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें, एक बार एडवाइस ले लें, अपनी दवाइयां देख के, अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन देख के, कि आपको क्या चीजें लेनी चाहिए। डोंट ईट, जैसे आजकल सप्लीमेंट्स बहुत ही फ्लेवरफुल गमीज में आ रहे हैं, मीठी मीठी गमीज। प्लीज अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एक तो वो ओवर ईटिंग ज्यादा लोग करते हैं, सप्लीमेंट्स की ओवर कंजम्पशन हैज बिकम अ बिगर प्रॉब्लम इन सम कंट्री, नॉट इन इंडिया एज सो फार, बट इन सम कंट्रीज वो टेस्टी होने की वजह से वो ओवर कंज्यूम हो रहा है, इसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स हो रही है। सो दीज गमीज एंड all these things, tasty things, please avoid, because this can create problems for you, and take them under supervision. So सप्लीमेंट एक तरह का शस्त्र है, इट्स अ वेपन, बेनिफिशियल वेपन। उसको संभालना समझिए, उसको लेना समझिए, what supplement to take, when to take, how to take, with what food to take, what medical interactions can happen, drug interactions can happen, natural food interactions can happen। तो ये सब समझ के अगर आप लेंगे तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। नहीं लेंगे तो या तो फायदा नहीं करेगा, या तो नुकसान भी कर सकता है। So with that, I want to close today's session. मेरी my suggestion to all of you is कि जो जो supplements के बारे में आपके सवाल questions हैं, वो आप हमें chat box में लिख सकते हैं, या आप अपना जो number है वो share कर सकते हैं, and we will individually look at all the questions and have you answered आपके supplements से जो संबंधित जितने भी सवाल हैं। And I would say that if you have started pursuing the path of healthcare, path of preventive healthcare, it's a beautiful journey. बस आपको थोड़ी समझ के करनी है to really take benefit out of this journey. So thank you so much for joining in today's session. And every Saturday we do have these sessions where we invite all of you to come and join in, and I talk about something which is of use to you and which will benefit you. So thank you. Bye bye. Have a great weekend.